Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज की क्लास में हम करने वाले हैं NDA Geography 1 2025. We'll see NDA 1 2025 में Geography से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए, what is the nature of the questions, what are the questions, कौन से specific unit में से आए हैं, how could those be handled. Also, we'll be discussing all the questions in detail so that you're able to understand, you're able to learn from each and every question, right? All right, so we start with the class then, and we refer to the first question. The first question reads, consider the following lines of longitude and latitude. So longitude आपको पता है, these are the vertical imaginary lines on the globe, और latitude है, ये क्या है, these are horizontal imaginary lines on the globe. Now here are three lines given. One is your prime meridian. Prime meridian is 0 degree longitude. ये हमारा also इससे time decide होता है. So इसको time meridian भी हम कहते हैं. So prime meridian is a longitude and it is 0 degree longitude. Now the second is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer is a latitude. और आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के ऊपर जो लाइन इमेजिनरी होती है we call it Tropic of Cancer. And then comes equator, that is again a latitude and 0 degree latitude. Now यहाँ हमें पूछा है which of the above lines are a great circle. Now great circle क्या होता है? Great circle is any imaginary line which is a complete circle and divides the earth into two equal halves. For example, जैसे equator है, equator divides the earth into two equal halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere. So equator definitely has to be a great circle. Now इसके अलावा अगर हम ये बाकी जो दोनों lines हैं इनको अगर consider करें, talking about the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer एक circle तो है मगर एक great circle नहीं है. क्यों? What is the difference? The difference is कि Tropic of Cancer does not divide Earth into two equal halves. क्योंकि जो northern half है वो smaller होता है और जो southern half है वो larger होगा. इसीलिए क्या हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक ग्रेट सर्कल मान सकते हैं? नो, राइट? सो नंबर 2 इज डेफिनेटली आउट. और यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 2 के बाहर होने से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. नाउ वी कंसिडर आइदर आंसर होगा 3 ओनली या 1 in 3 ओनली. नाउ टॉकिंग अबाउट 1 प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, राइट? जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर चलने वाली एक इस तरीके से एक सिंगल लाइन है. नाउ दिस इज ओनली अ हाफ सर्कल. This is not even a complete circle. तो great circle तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता. When it is not even a circle to begin with, right? So prime meridian again बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, right? So when 1 and 2 are out, we are left with only option 3. That is option D, and इसीलिए the correct option will be option D. So that is the answer to our first question. That is question number 86. All right, we move ahead then to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. कई बार यहाँ क्या लिखा होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर. सो मेक श्योर यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. सो रीड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द असेंडिंग ऑर्डर, राइट? तो असेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेजेंस इन अर्थ्स क्रस्ट, सो यहाँ पर 3 आपको मिनरल्स दिए हुए हैं, एम्फिबोलाइट, माइका और पायरोक्सिन. Also, a lot of you pronounce it as mica, which is the wrong pronunciation. This is called mica. Now, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे कि माइका जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, राइट? बहुत अबंडेंस में माइका क्रस्ट में प्रेजेंट होता है. सो असेंडिंग ऑर्डर में इसका मतलब है सबसे पहले हमें कौन सा बताना है? सबसे कम बताना है. तो अगर इनमें देखें तो सबसे कम यहाँ पर होगा नंबर 1, ऑलराइट? उसके बाद होगा नंबर 3 एंड नंबर 2. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी. ठीक है, बहुत लोगों ने इसका ऑप्शन ए किया होगा क्योंकि उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर नहीं पढ़ा ढंग से. सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बिल्कुल ऑपोजिट हैं, राइट? सो 132 एंड 132. प्लीज मार्क ऑप्शन डी एज द करेक्ट वन एंड नॉट ऑप्शन ए. दिस इज व्हाई मैंने एम्फसाइज किया कि ये जो टर्म है दैट कैन चेंज द करेक्ट ऑप्शन. सो मेक श्योर कि नॉलेज होते हुए आपका क्वेश्चन गलत ना हो. ऑलराइट, नाउ वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज question number 88, and the question reads, which of the following are the applied forces in the mechanical weathering. Mechanical weathering is also known as physical weathering. Physical weathering क्या होती है? Physical elements द्वारा किया गया degradation. So weathering simply means decline in the quality of a surface or basically decomposition or degradation. Now
फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस जो होते हैं उनमें से आप ये यहाँ आपको पूछ रहे हैं कौन से अप्लाइड फोर्सेस काम करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस डेफिनेटली, तो इट्स ऑलवेज एट वर्क, ग्रेविटी इज ऑलवेज एट वर्क, राइट। एक्सपेंशन फोर्स, जब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से भी वेदरिंग होती है। सो 1 and 2 तो डेफिनेटली होंगे। फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर, बिल्कुल वाटर का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से जब वेदरिंग होती है, क्योंकि वाटर इज ऑल्सो फिजिकल एलिमेंट और इसकी वजह से होने वाली वेदरिंग भी इसमें काउंट होगी। तो 1 2 3, इसीलिए ऑप्शन डी बहुत सिंपली विल बिकम आवर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, राइट। सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। आपका वेदरिंग और मास मूवमेंट जो जियोमॉर्फोलॉजी की हमारी क्लास थी उसमें से ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 89। नाउ ये जो क्वेश्चन है इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हुआ, और कंफ्यूजन हुआ बिकॉज ऑफ द अलास्कन करंट। अलास्कन करंट देखिए एक इंटरेस्टिंग करंट है, क्योंकि ये शुरू होती है एज अ वार्म करंट, बट ऊपर जब ये लैंड के पास जाती है अलास्कन रीजन में, वहां पर हम पाते हैं इसका टेम्परेचर इट स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक अ कोल्ड करंट। तो हम जो है अलास्कन करंट को कई जगह आप पाएंगे कि इसको कोल्ड करंट भी लिखा होता है, कई जगह वार्म करंट भी लिखा होता है, क्योंकि ये इनिशियली वार्म करंट ही होती है और इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, नॉर्दर्न डायरेक्शन में जा रही होती है। सो जनरली वी कॉल इट अ वार्म करंट। हाउएवर, let's look into the question. Which of the following is our cold ocean current? ओशन करंट आप सभी को पता है एक साइक्लिक मूवमेंट होता है ओशन वाटर का। एज आई ऑलवेज से दैट देयर आर सर्टेन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स एंड देयर आर सर्टेन वर्टिकल मूवमेंट्स। सो ये आपका हॉरिजॉन्टल साइक्लिक मूवमेंट होता है ओशन वाटर का, और इसके 6 गियर्स हैं इन टोटल इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर पूछा कि इनमें से कोल्ड करंट कौन से, क्योंकि ओशन करंट्स कोल्ड भी हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल कैनरी करंट, और वो वार्म भी हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल दी गल्फ स्ट्रीम, राइट। यहां पर हमें पूछा है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और अलास्कन करंट। देखिए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये आपका नॉर्थ अटलांटिक गियर की बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो है ये करंट है। ऑल्सो दिस करंट जो है इट कीप्स द यूनाइटेड किंगडम नेविगेबल थ्रू आउट द ईयर। अगर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का गर्म पानी यूके के पास नहीं जा रहा होता तो यूके वुड हैव बीन अ कंप्लीटली फ्रोजन कंट्री, और वो एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड के लिए सबसे बुरी चीज हो सकती है उसके आसपास का पानी जम जाए, राइट। सो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो कि गर्म पानी लेकर आती है यूके के पास, इट मेक्स यूके द कंट्री दैट इट इज टुडे, राइट। तो ये तो बहुत ही फेमस करंट है। नंबर 2 तो विल बी अ वार्म करंट, ठीक है। तो इट इज डेफिनेटली नॉट अ कोल्ड करंट, राइट। और हमें क्या पूछा है, कोल्ड करंट पूछा, तो नंबर 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उसे बी और सी तो एनीवे आर आउट ऑफ द पिक्चर। नाउ वी टॉक अबाउट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है इट इज कंप्लीटली अ कोल्ड करंट, जो कि आपके अंटार्कटिक रीजन में हम पाते हैं। अगर इतना भी पता हो आपको अलास्कन करंट के बारे में, इवन इफ यू डोंट थिंक अबाउट इट, आप बहुत इजीली इसके आंसर पर पहुंच सकते हैं, राइट। टॉकिंग अबाउट द अलास्कन करंट, जब कंफ्यूजन अलास्कन और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में ही है कि 1 ओनली या 3 ओनली, ऑफ कोर्स यू शुड ऑलवेज गो विद वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वाई? क्योंकि अलास्कन करंट का आधा पानी गर्म भी है, शुरुआत में तो गर्म करंट ही है वो, राइट, आगे जाकर ठंडी होती है। सो अगर मैं अलास्कन करंट के अराउंड उसके अगेंस्ट एक पिच की गई है ऐसी करंट विच इज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट विच इज वेरी वेरी कोल्ड, अंटार्कटिक रीजन जितना कोल्ड है, तो फिर उसके बाद में कोई डाउट नहीं बचता है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सिंपल। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स विल एक्सपीरियंस अ मिनिमम एंगल ऑफ सन रेज? इट इज द व्हेन इट इज द समर सोलिस्टिस। पहली बात, समर सोलिस्टिस क्या है? समर सोलिस्टिस आपका एक पोजीशन है ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और समर सोलिस्टिस कब होता है? ये होता है 21 जून को एवरी ईयर। 21 जून विच इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल योगा डे, राइट। और इसी डे पर क्या होता है? समर सोलिस्टिस, व्हेन इट इज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, और ये हर साल 21 जून को हम एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ यहाँ पूछा है कि मिनिमम एंगल ऑफ रेस किस पे आती है, तो मिनिमम एंगल ऑफ रेस की अगर बात करें, इसका मतलब सबसे ठंड ज्यादा कहाँ रहती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो पूरा ही गर्म रहता है, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर तो मैक्सिमम हीट आती है। अगर हम यहाँ इस तरीके से अर्थ को ड्रॉ करें, ये आपका इक्वेटर हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आर्कटिक सर्कल, और ये आपका अंटार्कटिक सर्कल। तो इसमें अगर आप देखेंगे इन लाइंस में जो भी सर्दर्न हेमिस्फीयर की लाइंस हैं, देखिए इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लाइंस है। अगर आप ऑड वन आउट भी करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही ऑड वन आउट होगा, और सिंपल लॉजिक के साथ आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते थे। अगर इतना आपको पता हो कि समर सॉलिस्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी करता है, इसका मतलब
वहां तो ज्यादा डायरेक्ट रेस पहुंच रही होंगी, तो हमें मिनिमम अगर चाहिए तो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही लेना होगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द ओनली लाइन आप यहाँ देख सकते हो जो कि सदर्न हेमिस्फीयर का लैटिट्यूड है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगर आपने सेंसिबली इसको डील किया होगा, दिस वुड हैव बीन एन इजी पाई टू हैव। Okay, now we move to the next question, that is on the Coriolis force. Coriolis force की बात करें तो you know this is a force जो कि wind के डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ इज नॉट अ स्टैटिक बॉडी, अर्थ कॉन्स्टेंटली रोटेट करती रहती है, तो जो विंड यू नॉर्थ पोल से मान लीजिए इक्वेटर जाना चाह रही है, वो स्ट्रेट नहीं ट्रैवल कर पाती क्योंकि अर्थ तब तक घूम जाती है। सो दिस डिफ्लेक्शन दैट इज कॉज्ड, ये इसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की बात करते हैं, which of the following statements with reference to Coriolis force are correct? तो हमें कौन से स्टेटमेंट्स निकालने हैं? करेक्ट। कई बार यहाँ इनकरेक्ट लिखा होता है और आप इसको इग्नोर कर देते हैं, डू नॉट डू दैट। नाउ कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये बिल्कुल ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आप देखते हैं हाई टू लो, ठीक है, वैसे लगता है, जबकि कोरियोलिस फोर्स आपका टॉप टू बॉटम की जगह लेफ्ट या राइट को लगता है। सो बिल्कुल टॉप टू बॉटम और लेफ्ट राइट, तो बिल्कुल ये इस तरीके से परपेंडिकुलर लगता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिना किसी डाउट इज करेक्ट, राइट। एट द इक्वेटर द कोरियोलिस फोर्स इज 0, ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है? मैक्सिमम होगा पोल्स पर, और मिनिमम कहाँ होगा? मिनिमम होता है ये आपका इक्वेटर पर। तो इस अगर हम इस बिलीफ के साथ आगे बढ़े तो बिल्कुल ये द फर्स्ट हाफ ऑफ इट इज बिल्कुल करेक्ट। एंड द विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स ओवर हियर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इतना कम होता है, इतना कम होता है, ऑलमोस्ट हम नेग्लिजिबल मानते हैं यहाँ पर इक्वेटर पर, तो जो आइसोबार्स होंगी उसके परपेंडिकुलर ही विंड्स फ्लो करती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एंड दैट इज व्हाई द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आगे चलते हैं, दैट इज 92। 92 की अगर बात करें, which of the following statements with reference to sleet is correct? Now sleet is a form of precipitation. Precipitation क्या होता है? Precipitation का मतलब होता है कि water reaching the ground from the sky in any form. तो जैसे रेनफॉल क्या है? पानी है, वो मॉइस्चर है, और वो कहाँ से आ रहा है? स्काई से ग्राउंड पे। स्नोफॉल अगेन क्या है? मॉइस्चर है, कहाँ से आ रहा है? स्काई से ग्राउंड। तो ये सब क्या है? ये है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, दे आर एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो आप हमेशा ये बोलेंगे कि प्रेसिपिटेशन क्या है? वाटर रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम द स्काई, राइट। स्लीट इज ऑल्सो वन सच फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, और स्लीट पर्टिकुलरली है विंटर प्रेसिपिटेशन, ये विंटर्स में आप मुख्य रूप से पाएंगे। स्लीट होता क्या है पहले जानिए। स्लीट यूं समझिए कि स्लीट स्टार्ट होता है एज स्नोफ्लेक्स, ये स्नोफ्लेक्स हैं, थोड़ा आपको बिलीव करने में मुश्किल होगा बट ये स्नोफ्लेक्स हैं, ठीक है। अब ये स्नोफ्लेक्स हैं क्योंकि यहाँ पर ये ठंडा लेयर है, राइट। इसका टेम्परेचर जो है दिस इज अ कोल्ड लेयर। बाई चांस अगर ये वार्म लेयर में आ जाए, तो वार्म लेयर में आने की वजह से क्या होगा? ये फ्लेक्स जो हैं, ये जो फ्लेक्स यहाँ जब एंटर करते हैं, दे टर्न इनटू ड्रॉपलेट्स, ये पिघल जाते हैं, और यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए ये ड्रॉप्स में बदल जाता है। मान लीजिए फर्दर एक कोल्ड लेयर है, तो कोल्ड लेयर में जाने के बाद क्या होगा? ये रेन ड्रॉप्स जब यहाँ जाएंगी ये फ्रीज हो जाएंगी, राइट। सो ये रेन ड्रॉप्स जब इसमें जाती हैं ये फ्रीज हो जाती हैं, एंड इट रीचेस द ग्राउंड एज स्लीट। तो स्लीट होता है, ये शुरू होता है कोल्ड लेयर में, फिर जाता है वार्म लेयर में, और फिर जाता है कोल्ड लेयर में। यू अंडरस्टैंड? तो आप देखेंगे ग्राउंड के सबसे पास में कैसा होगा? कोल्ड लेयर, उसके ऊपर वार्म लेयर, उसके ऊपर कोल्ड लेयर। नाउ लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, बिल्कुल ठीक है, ये रेन ड्रॉप्स हैं और ये फ्रीज हो गई हैं। एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर, स्नो थी और मेल्टेड स्नो वाटर जब रीफ्रीज हो जाता है इसी को हम स्लीट कहते हैं। पहला सेंटेंस तो बेसिक डेफिनेशन है स्लीट की, अगर आप समझते हैं स्लीट क्या होता है, जो कि इतना डिटेल में समझाया जा चुका है क्लासेस में, अगर आपने जरा भी ध्यान दिया होगा यू वुड नो कि स्लीट क्या होता है, ठीक है। स्नोफ्लेक है, वो रेन ड्रॉप बनता है, फिर उसका आइस पैलेट बन जाता है, राइट। नाउ सेकंड इज इट अकर्स व्हेन अ लेयर ऑफ एयर विद द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ओवरलाइज अ वार्म लेयर नियर द ग्राउंड। नाउ सी, वार्म लेयर नियर द ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर नियर द ग्राउंड क्या होगा? कोल्ड, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ओवरलाइज अ वार्म लेयर नियर द ग्राउंड सरफेस, ऐसा नहीं है, क्योंकि ओवरलाई कौन कर रहा है? वार्म लेयर, और ग्राउंड के पास यहाँ जो है ये बोल रहा है वार्म लेयर नियर द ग्राउंड, नहीं, नियर द ग्राउंड क्या है? कोल्ड लेयर। सो सेंटेंस 2 विल बी इनकरेक्ट।
दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर, राइट. सो अगेन ये आपका इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इनफैक्ट कंडेंसेशन से और इस ये जो यूनिट है इससे और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे इस पर्टिकुलर पेपर में, राइट. सो इट वाज एन इजी क्वेश्चन टू हैंडल. ऑलराइट, नाउ वी मूव अहेड. ओके, अब वो जो लास्ट क्वेश्चन आपने देखा दैट वाज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मैप क्वेश्चन आता है, राइट. क्योंकि ज्योग्राफी में देयर आर 3 पिलर्स ऑफ ज्योग्राफी, द कॉन्सेप्ट्स, द फैक्ट्स एंड द मैप्स. तो कॉन्सेप्ट से अभी आपने क्वेश्चन देखा. नाउ देयर इज अ मैप क्वेश्चन. ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो आप देखते हैं इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ये तो आपका हो गया सारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट. इसके बियॉन्ड और इसके बियॉन्ड जो क्लाइमेट है उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो अगर आप इतना भी समझ लें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर वाले देश और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाले देश, इनकी बात हो रही है, यहाँ पर आप पाएंगे कि आप देखेंगे कि इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपीरियंस्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट वुड बी साउथ अर्जेंटीना. बाकी सभी में है, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट 94. 94 again is more of a fact plus map, right. इस क्वेश्चन में देखिए महेंद्रगिरी, the highest peak of the eastern ghats is located in which of the following states. महेंद्रगिरी आप देखते हैं बहुत फेमस जो है पीक है, हाईएस्ट पीक है आपकी ईस्टर्न घाट्स की, वो कौन से स्टेट में है. सो महेंद्रगिरी, the highest peak of eastern ghats is located in which state, and the correct answer is Odisha. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा इसका लोकेशन पूछा है और हाईएस्ट पीक तो उन्होंने बोला ही है, वो अब से पूछा भी नहीं है, राइट. तो सिर्फ महेंद्रगिरी का हाईएस्ट पॉइंट पूछा है. एक बार अरावली का भी पूछा था कि गुरु शिखर कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, राइट. सो ये बेसिक जो हाईएस्ट पीक को लेकर क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछा जाता है हाईएस्ट हिमालयन पीक इंडिया की कौन सी है. वैसे हिमालयन पीक माउंट एवरेस्ट है, राइट. और वैसे इंडिया की बात करें तो K2 है, राइट. चलिए अब आगे चलेंगे. टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया नोन एज शोलाज. शोला फॉरेस्ट की बात करें, ये बहुत फेमस फॉरेस्ट है हमारे नीलगिरी एरिया में जो पाए जाते हैं. शोला फॉरेस्ट ऐसे लगते हैं एज इफ द फॉरेस्ट इज ऑन फायर, राइट. और ये अपने इसके लिए बड़े फेमस है. इनफैक्ट नीलगिरी आप ओवरऑल भी देखेंगे इट इज वेरी पॉपुलर. बार बार यूपीएससी ने इसमें से क्वेश्चंस पूछे हैं. एक बार नीलगिरी ताहर नाम का एक गजेल वहां मिलता है, हिरन जैसा एक जानवर होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था. सो नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर, ठीक है. इस पर भी since we are discussing, why not learn something extra, right? So नीलगिरी ताहर जो है एक गजेल वहां पाया जाता है which is endemic. It is endemic. endemic का मतलब होता है कि सिर्फ ये नीलगिरी में ही पाया जाता है. तो नीलगिरी फॉरेस्ट में, उन हिल्स में ये नीलगिरी ताहर नाम का जानवर भी पाया जाता है. एनीवे यहाँ पर पूछा है कि जो शोलाज हैं आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स. अनमलाई बिल्कुल इसमें पाया जाता है, नीलगिरी में तो पाया ही जाएगा, और पालनी हिल्स में भी पाया जाता है. 1 2 3 तीनों ही करेक्ट हैं, इसीलिए बहुत इजीली ऑप्शन डी बिकम्स दी करेक्ट आंसर. ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे शोला फॉरेस्ट की बात. ये फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स आपका जो यूनिट है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है. एंड देन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये जो है आप देखेंगे ये लगता है ये फैक्ट जैसा. ये क्वेश्चन में बहुत लोगों ने ये कंप्लेन की, बहुत स्टूडेंट्स ने कि ये तो ऐसा कैसे क्वेश्चन आ गया, इतना फैक्ट पूछ लिया, ऐसे कैसे यूपीएससी ने पूछ लिया. देखिए ये लग रहा है आपको बहुत क्रिटिकल फैक्ट, बट बहुत क्रिटिकल फैक्ट है नहीं. अगर आपको ये भी पता हो कि कॉपर प्रोड्यूसिंग मेजर स्टेट्स कौन से हैं, 5 ही मेजर ढंग की जो है ज्यादा अच्छे अबंडेंस में प्रोवाइड करने वाली कॉपर माइंस 5-7 ही हैं. अगर आपको बेसिक भी पता होता है यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. Now, as per the annual report 2023-24 of the Ministry of Mines, Government of India, और बहुत लोगों ने यहाँ तक ये एनुअल रिपोर्ट ये शब्द पढ़ते ही गिव अप कर दिया होगा. ठीक है, यू शुड नेवर डू दैट, एटलीस्ट पढ़िए इसको. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर. ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, और ये बहुत सालों से ये 2 मेजर स्टेट्स ही रहे हैं, राइट. राजस्थान सभी को पता है कि राजस्थान बहुत फेमस है अपनी कॉपर माइंस के लिए. राजस्थान का नाम पढ़ते ही पता हो जाना चाहिए कि ए या बी में से ही होगा आंसर. तो सी और डी तो आप वैसे ही हटा सकते हैं. सी में, चलो सी में भी राजस्थान है, चलो ये भी हो सकता है कि चलो कुछ चांस इसका भी बनता है, बट झारखंड में कोई मेजर कॉपर माइन नहीं है, तो इसकी वजह से इसको आप रूल आउट कर सकते हो. 50-50 पर आप पहुंच गए हैं. नाउ राजस्थान में बहुत फेमस माइंस हैं जिनका नाम है खेतड़ी माइंस. ठीक है, तो खेतड़ी माइन से मेजर कॉपर जो है हम निकालते हैं. देन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक माइन है बालाघाट माइन, अगेन एक मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग माइन है. ठीक है,
इनफैक्ट आई थिंक लार्जेस्ट इसमें यहाँ मैंगनीज भी मिलता है। ठीक है, तो बालाघाट और खेतड़ी की वजह से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, ये स्टैटिक है, लग रहा है करंट आपको, बट ये दिस इज मोर ऑफ स्टैटिक। स्टैटिक में भी तो हम यही पढ़ रहे हैं कि लीडिंग प्रोड्यूसर राजस्थान और मध्य प्रदेश है, तो ये लग रहा होगा बहुत लोगों को कि ये करंट का क्वेश्चन है और इतना पर्टिकुलर पूछ लिया और डेटा पूछ लिया, रिपोर्ट कितनी याद करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर कौन है इंडिया में, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नो पैनिक वॉज रिक्वायर्ड एज सच। Okay, now we talk about which of the following is not a major oil field. Which of the following is not a major oil field? ठीक है, तो नॉट अ मेजर ऑयल फील्ड की अगर बात करें, अंकलेश्वर तो गुजरात में बहुत फेमस है, इन गुजरात पूछा है तो गुजरात में कौन से नहीं है, ऑड वन आपको करना था। अंकलेश्वर गुजरात में है, फेमस है, कोसांबा भी है, महसाना भी है, ये तीनों ही फेमस हैं। ठीक है, और ये गुजरात में है। नाउ बच गया कौन सा, मोरान। मोरान एक्चुअली असम जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां से ये आपको मिलता है। असम में और भी ऑयल फील्ड्स हैं, जैसे आपका नाहर कातिया जो है, नाहर कातिया नाम की एक जगह ऑयल फील्ड है, दिग्बोई एक अनदर ऑयल फील्ड है। ठीक है, और मोरान तो है ही है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ऑयल फील्ड्स हैं इन द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, तो ये बेसिक आपसे रॉक्स एंड मिनरल्स जो हमारी यूनिट है उसमें हम देखते हैं कौन से मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, राइट। और अगर आयरन और स्पेसिफिकली पूछा होता है कोई माइन तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे आयरन और माइंस हैं, बट कॉपर माइंस तो भाई 5-7 माइंस हैं, ऑयल फील्ड्स ये 3-4 हमारे ऑयल फील्ड्स हैं। तो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन टू हैंडल। अगर आपने ब्रीफली भी कवर किया होता है रॉक्स एंड मिनरल्स, दिस वुड हैव बीन अ गुड वन। नाउ आगे अगर चलें, वी टॉक अबाउट दिस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इनफैक्ट दिस इज द थर्ड टाइम आई एम सीइंग दिस क्वेश्चन इन द पास्ट 10 years। ठीक है, ये क्वेश्चन जो कल्चरेबल वेस्टलैंड पर स्पेसिफिकली, देखिए जब हम एग्रीकल्चर यूनिट कवर करते हैं तब हम एक यूनिट उसमें सब यूनिट कवर करते हैं, दैट इज लैंड यूज कैटेगरीज। इंडिया में लैंड यूज के बेसिस पर हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है। जैसे आपने टर्म्स पढ़ी होंगी, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, आपने पढ़ा होगा नेट सोन एरिया, आपने पढ़ा होगा आपका फैलो लैंड, राइट, करंट फैलो, इसके अलावा कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो ये जो सारी टर्म्स हैं आप पाएंगे कि ये टर्म्स को, इनका आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे नेट सोन एरिया वो एरिया होता है जो अभी करंटली अंडर कल्टीवेशन है, तो अगर मैं उस फील्ड को विजिट करूं मुझे वहां फसल उगी हुई दिखेगी। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अगर एक फील्ड को मैंने साल में 2 बार उसमें से फसल उगाई है तो उसको मैं इनटू 2 काउंट करूंगी। तो इसीलिए ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इज ऑलवेज लार्जर देन दी नेट सोन एरिया, राइट। देन अगर हम फैलो लैंड की बात करें, फैलो लैंड ऐसी जमीन होती है, करंट फैलो अगर बात करें, करंट फैलो जो अभी के लिए खाली छोड़ दी गई है मगर 1 साल से कम पीरियड के लिए, तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने अगर किसी जमीन पर खेती नहीं की गई उसको खाली छोड़ा जाता है। और ये प्रैक्टिस स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ताकि सॉइल को थोड़ा टाइम मिले रेस्ट करने का, रिजुविनेट होने का, तो इसको बोलते हैं करंट फैलो। उसके बाद होती है फैलो अदर देन करंट फैलो। उसका मतलब है कि आपने एक लैंड को 1 साल से ज्यादा के लिए खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपकी एक थर्ड कैटेगरी आती है कल्चरेबल वेस्टलैंड। इसका मतलब है कि 5 साल हो गए हैं मगर उस पर कोई एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, सो इट इज कल्चरेबल, मतलब वो कल्टिवेबल है बट आपने उसको छोड़ा हुआ है 5 साल से, तो इट इज एज गुड एज अ वेस्टलैंड, राइट। तो वेस्टलैंड है, कल्चरेबल वेस्टलैंड होती है जो 5 साल से ज्यादा आपने खाली छोड़ी हुई जमीन है, राइट। तो ये आपकी एक स्पेसिफिक लैंड यूज कैटेगरी, ये पहले भी पूछा हुआ है सीडीएस में और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में बेसिक क्वेश्चन अगर आया होगा तो आपने किया होगा, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट क्वेश्चन, ये एक स्पेसिफिक पॉलिसी से पूछा है, दिस इज ज्योग्राफी come more current. Now which one among the following is not included in the national food security mission? commercial crops, commercial crops जिनको कैश क्रॉप्स में हम कहते हैं, इसमें आती हैं आपकी टी, कॉफी, शुगर केन, जूट वगैरह, ये सारी क्रॉप्स। और इन क्रॉप्स में अगर बात करें तो कॉटन बिल्कुल आता है इस पॉलिसी के अंडर, कॉफी नहीं आता है, जूट भी आता है और शुगर केन तो आएगा ही आएगा, इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, राइट। तो आप देखेंगे कि कॉफी हम ऑल्दो प्रोड्यूस करते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं और ये इस पॉलिसी के अंडर, इस मिशन के अंडर भी नहीं इंक्लूडेड है। तो दिस आई टेक इट कि दिस इज अ फैक्ट और काफी लोगों को थोड़ी मुश्किल इसमें हुई होगी, राइट। बट जिसने रीसेंट पॉलिसीज कवर की अंडर करंट अफेयर्स अगर आपने कवर किया है, यू मस्ट हैव हैंडल्ड दिस क्वेश्चन।
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका ज्योग्राफी में से आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हमारी हम पढ़ते हैं, जो स्टील आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज और प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, 3 में से अगर एक, ये हिंट्स हैं, राइट, अगर आपको हल्का भी नॉलेज होगा तो 3 हिंट्स के बाद तो आप फिगर आउट कर ही लोगे, राइट। इट वाज सेटअप इन 1964, मतलब कि थोड़ा लेट सेटअप हुआ है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में भिलाई जो है, रोरकेला, दुर्गापुर, ये काफी पहले ही हो गए थे, राइट। उसके बाद में और विद रशियन कोलैबोरेशन, ये चलो ठीक है। इट रिसीव्स आयरन और फ्रॉम रोरकेला रीजन, रोरकेला रीजन से करता है, बट ये बोकारो स्टील प्लांट है, ठीक है, रोरकेला स्टील प्लांट नहीं है। द करेक्ट आंसर इसका होगा बोकारो स्टील प्लांट। वाटर एंड हाइडल पावर इज सप्लाइड बाय दामोदर वैली, तो जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है डीवीसी, डीवीसी बोकारो स्टील प्लांट को प्रोवाइड करती है, राइट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 101। An offshore terminal at Vadinar has been developed to reduce pressure from which of the following major ports in India? देखिए, पोर्ट्स को लेकर क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, इस बार भी क्वेश्चन आया है। यहाँ आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, राइट। कांडला पोर्ट जो कि आपका गुजरात में है, उसके बाद में कोचिन पोर्ट जो कि आपका केरला में है, देन मरमुगांव जो कि गोवा में आपका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, एंड न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये तो हो गए इनकी बेसिक लोकेशन के बाद। अब वादिनार आपको पता है ये गुजरात में है, ठीक है, और इसीलिए आंसर हो जाएगा। अगर इतना भी पता हो कि वादिनार गुजरात में और कांडला भी गुजरात में, तो इससे भी आप पहुंच सकते थे, राइट। तो वादिनार पोर्ट हमने बनाया ताकि हमारा जो कांडला पोर्ट है, जिसको दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं गुजरात में, विच इज अ व्हाट काइंड ऑफ अ पोर्ट इज दिस, दिस इज अ टाइडल पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पे प्रेशर रिड्यूस करने के लिए वादिनार टर्मिनल हमने बनाया है, ताकि उस पर इतना ज्यादा जो कार्गो प्रेशर है वो कम किया जा सके। All right, now we move ahead to the next question. As per the India State Forest Report, again एक रिपोर्ट पूछी 2021 की पूछी है, बट स्टिल ये क्वेश्चन हैंडल करना बहुत इजी था। Which of the following Himalayan states has the highest percentage of its geographical area under forest? वैसे देखेंगे तो लक्षद्वीप फेमस है अपने फॉरेस्ट के लिए, वहां लगभग पूरी जमीन में जंगल ही है। अगर यहाँ हिमालयन स्टेट्स पूछे तो हिमालयन स्टेट्स में आप पाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहां पर इतना डेवलपमेंट अभी नहीं है। हिमाचल और उत्तराखंड में देखिए काफी डेवलपमेंट एज इन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की वजह से काफी लैंड क्लियर की जा चुकी है। सिक्किम बात करें तो सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रीकल्चर वाइज आप देखोगे सिक्किम में काफी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं। तो अगर इतनी भी बेसिक अवेयरनेस भी हो तो यू नो कि इनका मुश्किल है चांस। अरुणाचल प्रदेश आप ऑन द अदर हैंड, यहाँ ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं है, और यहाँ पर आप पाते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न एक ये स्टेट है जो कि जाना जाता है अपनी फॉरेस्ट डेंसिटी के लिए। इनफैक्ट यहाँ एक रेड पांडा नाम का जानवर पाया जाता है जो कि ऑल्सो लिव्स इन वेरी डीप डार्क फॉरेस्ट। और यहाँ जो फॉरेस्ट मिलते हैं ये किस प्रकार के हैं, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जिनका कोई ड्राई सीजन नहीं होता स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि कुछ पेड़ जो हैं यहाँ पर किसी एक सीजन में उनके पत्ते झड़ते हैं, बाकी पेड़ों के किसी और सीजन में। सो देयर इज नो स्पेसिफिक ड्राई सीजन। यहाँ जो ट्री डेंसिटी है, ट्री डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और आप पाएंगे कि ट्री डाइवर्सिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो डाइवर्सिटी के मामले में विविधता भी कम नहीं है, और आप देखेंगे उसकी डेंसिटी भी कुछ कम नहीं है, राइट। सो दिस इज अबाउट योर अरुणाचल प्रदेश का geographical area that is under forests. All right, next question, that is which of the following statements with reference to L wave or long wave generated by earthquake are correct? Now long wave की बात करें, they follow the earth circumference, बिल्कुल ठीक है, ये एक प्रकार की सरफेस वेव है। पहली बात तो जब हम सेस्मिक वेव्स पढ़ते हैं, सेस्मिक वेव्स वो वेव्स हैं जो कि अर्थ के अंदर जनरेट होकर बाहर आती हैं। सेस्मिक वेव्स दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स आप देखेंगे कि सरफेस वेव्स जो हैं जो है ऊपर सरफेस पे टकराने के बाद में होती हैं, जिसमें आते हैं दो प्रकार की वेव्स, एल वेव्स और यहाँ पर आर वेव्स। जबकि बॉडी वेव्स आप देखेंगे प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। तो ये चार प्रकार की हम सेस्मिक वेव्स देखते हैं। इसमें से फास्टेस्ट कौन सी होती है, पी वेव्स, और लीस्ट डिस्ट्रक्टिव भी पी वेव होती है। यहाँ मैं पूछा एल वेव के बारे में,
तो ये फॉलो द अर्थ सरकमफरेंस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दे आर अ सरफेस वेव, तो ये सरफेस पे इस तरीके से अर्थ के सरकमफरेंस को ट्रैवल करती हैं, ये सही है। दे ट्रैवल एट मोर और लेस एट अ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट इनकी नहीं होती है, क्योंकि विद द चेंज ऑफ मीडियम और बाकी अदर फैक्टर्स इनकी आप देखेंगे स्पीड जो है ऊपर नीचे चलती रहती है, तो स्पीड इनकी कांस्टेंट तो नहीं रहती है, ठीक है। वैसे किसी भी सेस्मिक वेव के लिए कहना कि कांस्टेंट स्पीड है, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है, तो कॉमन सेंस से भी आप इस स्टेटमेंट को तो हटा ही सकते थे। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट वुड बी स्टेटमेंट ए। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन पूछा है, ये स्लेट होता है या ये होती है ये रॉक। स्लेट कैसे बनता है? इट इज अ टाइप ऑफ, पहली बात तो मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक आप पाएंगे कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, राइट? मेटामॉर्फिक रॉक, दूसरी होती है सेडिमेंटरी रॉक, और सबसे पहले बेसिक जो प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक्स होती है वो होती है इग्नियस रॉक्स। और स्लेट क्या है? स्लेट इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब ये बहुत बार वॉल्केनिक ऐश से भी बनती है। Which of the following is formed when volcanic ash is carried by running water and is deposited as a sedimentary layer? और उसके बाद में वो जब प्रेशर और वॉल्यूम के अंडर वो जो है फर्दर चेंज हो जाती है स्लेट में, ठीक है। तो आप पाएंगे कि ये स्लेट की डेफिनेशन उन्होंने पूछी है, अगर आपको ये पता होता तो इजी रहता, राइट? सो दिस इज वन अगेन क्वेश्चन फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके, फर्दर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, and that should also be the last question. Condensation of water vapor into water is influenced by which of the following? कंडेंसेशन आप पाते हैं, कंडेंसेशन 4 प्रकार का होता है। कंडेंसेशन जब एट हाइट होगा, मतलब हाइट पर जाकर अगर मॉइस्चर कंडेंस कर रहा है तब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। जब ऑन ग्राउंड जब कंडेंसेशन हम करते हैं, ग्राउंड पे जब हम करते हैं तो क्या बनता है? तब बनता है फॉग। जब कंडेंसेशन कोल्ड ग्राउंड पे होता है, मतलब ग्राउंड कैसा है? नॉर्मल नहीं है, ठंडा है। ठंडे ग्राउंड पर जब कंडेंसेशन होता है तब बनती है ड्यू। ड्यू समझते हैं, जिसको ओस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? धुंध, कोहरा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ड्यू बोलते हैं ओस को। कोल्ड ग्राउंड की जगह जब फ्रीजिंग ग्राउंड पर होता है, जब फ्रीजिंग ग्राउंड पर कंडेंसेशन होती है तब क्या बनता है? तब बनता है फ्रॉस्ट, ठीक है। आपने फ्रॉस्ट बाइट नाम की चीज सुनी होगी। वो कब होता है? जब फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होता है टेम्परेचर, मतलब ठंडा तो यहाँ पर भी है मगर इट इज नॉट बिलो 0 डिग्री। यहाँ क्या होता है? 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चला जाता है और यहाँ क्या बनता है? फ्रॉस्ट, ठीक है। तो ये आपके 4 फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन होते हैं। यहाँ पूछा है कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला वॉल्यूम ऑफ एयर, बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ एयर अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर एक स्मॉल पैकेट ऑफ एयर है तो वो क्या करेगा? वो कंडेंसेशन को प्रमोट करेगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम कम है एयर का तो वो कम ही मॉइस्चर होल्ड कर पाएगी, और जैसे ही मॉइस्चर बढ़ेगा वहां कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, राइट? सेकेंड इज ह्यूमिडिटी। बिल्कुल, ह्यूमिडिटी अगेन आप पाते हैं कि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, देन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एंड देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट? नाउ ह्यूमिडिटी, अगेन ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी उतना कंडेंसेशन जल्दी होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब है कि मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट है, तो उतना ही आप पाएंगे ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी कंडेंसेशन उतना ज्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ एयर जितनी ज्यादा होगी कंडेंसेशन उतना कम होगा। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना कम होगा कंडेंसेशन उतना ज्यादा होगा। सो आप देख रहे हैं ये ह्यूमिडिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर जितना कम होगा कंडेंसेशन उतना ज्यादा होगा, राइट? तो फैक्टर्स तो अफेक्ट तीनों ही करते हैं। ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट कैसा है? पॉजिटिव है। वॉल्यूम ऑफ एयर और इनका नेगेटिव है। तो अफेक्ट किया हमें तो सिर्फ ये पूछा है कि कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं पूछा है। तो हमें क्या बताना है कि इन्फ्लुएंस तो तीनों का ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट? सो दीज वर द क्वेश्चंस जो कि हमने देखा कि ज्योग्राफी में से इस बार एनडीए में पूछा गया। एंड इसमें आप देखेंगे ओवरऑल तो आप पाएंगे कि रॉक्स एंड मिनरल्स से भी क्वेश्चन आए हैं, और इसमें आप इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन से भी क्वेश्चन आए हैं, और इस बार कुछ करंट स्कीम्स और करंट डेटा से भी क्वेश्चन आए हैं। आप देखेंगे तो रूट्स और कम्युनिकेशन जो ट्रांसपोर्टेशन वाली यूनिट है उसमें से भी क्वेश्चन आए, एग्रीकल्चर में से भी क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चंस आप पाएंगे ओवरऑल थोड़े स्प्रेड आउट थे। स्लीट से जैसे क्वेश्चन आया वो आपका अगेन
प्रेसिपिटेशन का ही पार्ट था। तो आप पाते हैं क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चंस आए, हालांकि इस बार थोड़े जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन हम कम पाते हैं, बारिंग अ फ्यू जो रॉक्स एंड मिनरल्स से जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी के अलावा आप देखेंगे देयर आर सर्टेन यूनिट्स, इंटरेस्टिंगली इस बार सॉइल्स ऑफ इंडिया से क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि पिछले कुछ सेट्स में हमने देखा सॉइल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, राइट। तो इस बार सॉइल से क्वेश्चन कम आए हैं, हो सकता है आगे वाले सेट में आने की उम्मीद ज्यादा होगी इसीलिए। सो क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर एग्जाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे वो फेयरली स्प्रेड आउट थे पूरे सिलेबस में से। सो वी शुड टेक नोट ऑफ दिस थिंग कि किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यू सॉ दैट क्वेश्चंस हर यूनिट में से ही आए हैं। क्वेश्चंस का नेचर आप पाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस प्योरली स्टैटिक में से थे, बाकी क्वेश्चन स्टैटिक में थोड़ा करंट मिलाकर थे, कुछ क्वेश्चंस इवन मैप में भी आप पाएंगे स्टैटिक प्लस मैप था। तो द पेपर वाज फेयरली इजी, बहुत मुश्किल नहीं था। बेसिक अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है you should have handled most of the questions with ease, right? So with that we end the class. Keep preparing. Jai Hind.